Our today's topic is C3 C4 intermediates. हमने पिछले लेक्चर में C3 प्लांट्स पढ़े थे, C4 पढ़े थे, कैम पढ़े थे, ठीक है. C3 C4 intermediates were remaining. So among higher plants, C3 species have high levels of photorespiration which limit the rate of net carbon dioxide assimilation, while C4 plants have evolved a mechanism that overcomes photorespiration. Some species have photorespiration levels intermediate to C3 and C4 species, as well as other intermediate anatomical, physiological and biochemical characteristics. These plants are known as C3 C4 intermediates. These plants have intermediate leaf anatomies that contain bundle sheath cells that are less distinct and less developed than the C4 plants. So far, 22 species, including both monocots and dicots of 7 genera from 5 families, have been identified as intermediate species. Most of the intermediates belong to the genera that are known to contain both C3 and C4 species, like Mollugo, Alternantheria, Flavaria, Noracne, and Panicum. However, in the genera Parthenium and Mauricandia, only C3 and intermediate species are known to exist. यानी ऊपर उन्होंने ये बताया है कि so far 22 species including both of mono and dicots, 7 genera from 5 families have been identified as intermediate species, and most of the intermediates belong to the genera that are known to contain both C3 and C4 species. यानी ये Mollugo, Alternantheria, Flavaria, Noranki and Panicum, इन सब में C3, C4 and C3, C4 intermediates तीनों तरह की species इन genera में exist करती हैं. While in genera Parthenium and Mauricandia, only C3 and intermediate species are known to exist. यानी इन दोनों genera में C4 की कोई स्पीशी नहीं है, कोई ऐसी स्पीशी नहीं है जिसमें C4 साइकिल हो. Like C4 species, intermediates are found in what are considered to be the most advanced orders such as Astrales, Flavaria, Parthenium. Cryophylales में Alternantheria, Mollugo, Caparelles में Mauricandia and Poales में Noracne and Panicum. The high frequency of occurrence of intermediates in the genus Flavaria is rather unusual. At least 10 of the 21 species in the genus have been classified as intermediates. It is hypothesized that some of these species in the genus Flavaria may be in an active process of evolution from C3 to C4 photosynthesis. Celery, Apium graveolens, has lower oxygen inhibition of photosynthesis than in C3 plants. Oxygen inhibition of photosynthesis mean कि ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करती है. कैसे इनहिबिट करती है? पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रुबिस्को जो है वो कार्बोक्सिलेज फंक्शन भी परफॉर्म करता है और ऑक्सीजनेज भी फंक्शन परफॉर्म करता है. अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए तो रुबिस्को ऑक्सीजनेज फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है, यानी फोटो रेस्पिरेशन करना शुरू कर देता है. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सिलेरी हैज़ लोअर ऑक्सीजन इनहिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी सिलेरी में फोटो रेस्पिरेशन का रेट कम होता है. सिलेरी में ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के रेट को ज़्यादा इनहिबिट नहीं कर सकती दैन इन C3 प्लांट्स, जबकि C3 में जो है वो ऑक्सीजन इनहिबिट करती है फोटोसिंथेसिस को. अगर ऑक्सीजन का लेवल हाई हो तो वो इनहिबिट करती है, फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती है फोटोसिंथेसिस को स्टॉप करके. रुबिस्को स्टॉप कर देता है ना कार्बन फिक्सेशन, और ऑक्सीजन फिक्सेशन स्टार्ट कर देता है. कार्बन फिक्सेशन को स्टॉप करके ऑक्सीजन फिक्सेशन स्टार्ट कर देता है. इट विल बी ऑफ इंटरेस्ट टू डिटरमिन हाउ फोटो रेस्पिरेशन में बी रिड्यूस्ड इन दिस क्रॉप स्पीशीज. नो डाउट मोर इंटरमीडिएट स्पीशीज आर येट टू बी आइडेंटिफाइड अमंग हायर प्लांट्स. हैबिटेट क्या होते हैं इंटरमीडिएट स्पीशीज़ के? यूजुअली दे ऑक्यूपाई अ हॉट एंड ड्राई और अ सेलाइन हैबिटेट. फॉर एग्जांपल, टू Alternantheria species discovered to be intermediates grow abundantly as weeds in arid regions of India. ये मैंने सिर्फ आपको हमारे रीजन की
एग्जाम्पल दी है, अदरवाइज इसमें ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स की और भी मैक्सिको के डेजर्ट्स की डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं. But unlike other intermediates, the three intermediate panicum species found in North and South America occupy a mesic habitat. यानी ये जो panicum की species हैं 3, ये भी intermediate हैं लेकिन ये mesic habitats में रहती हैं rather than xeric. Next is leaf anatomy and ultrastructure of C3C4 intermediates. Most C3C4 species tend to have a leaf anatomy intermediate to C3 and C4 plants. ज़ाहिर ये इंटरमीडिएट हैं तो इनकी एनाटमी भी इंटरमीडिएट है, इनकी फिजियोलॉजी भी इंटरमीडिएट है, बायोकेमिस्ट्री भी. C4 plants have Cran cells consisting of distinctive wreath-like thick-walled cells with numerous chloroplasts which surround the vascular tissue in the leaf. While C3 plants lack Cran cells and bundle sheath cells, when present, bundle sheath cells जो है वो Cran cells की स्पेशलिटी है, और C3 प्लांट्स में चूँकि Cran एनाटमी या Cran cells नहीं होते तो बंडल शीथ सेल्स भी नहीं होते. लेकिन समटाइम्स अगर रेयरली ये C3 में प्रेजेंट हों तो कंटेन वेरी फ्यू और नो क्लोरोप्लास्ट, जबकि Cran एनाटमी में C4 में बंडल शीट सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं और बड़े होते हैं मीजोफिल से. ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में. डू यू रिमेंबर? द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग बंडल शीट सेल्स इज अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट्स. अब जो इंटरमीडिएट्स हैं उसमें बंडल शीट सेल्स भी होते हैं और उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है. हाउएवर देयर इज ट्रेमेंडस वेरिएशन अमंग द इंटरमीडिएट स्पीशीज इन द डिग्री ऑफ Cran सेल्स डेवलपमेंट एंड लीफ एनाटमी इन दीज स्पीशीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जनरल ग्रुप्स ऑन दिस बेसिस. These range from a Cran's type. 3 general groups जो है, number 1 is Cran's type, number 2 is Cran's like type, and number 3 is poorly developed Cran's anatomy. First type जो है वो almost Cran's anatomy उसमें होती है, like in Neurachne minor and Flavaria browning. और second type है Cran's like type जो उससे similar है लेकिन fully Cran's anatomy उसमें नहीं exist करती, for example in Panicum malioides. And third type is poorly developed Cran's anatomy like Molugo verticillate. In all intermediates examined, the bundle sheath chloroplasts have grana and accumulate starch. The granal nature of bundle sheath chloroplasts would suggest they are capable of PS2 activity, photosystem 2 activity, यानी जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, वाटर स्प्लिट होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, अनलाइक ए ग्रैनल बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट इन सम C4 प्लांट्स. In addition to numerous chloroplasts, the bundle sheath cells of most intermediates also have many large prominent mitochondria located in a centripetal position and in close association with chloroplasts. अब ये C4 में नहीं होता, ये intermediates में होता है, ठीक है. Except F linearis, the presence of सेंट्रीपीटल पोजीशन. सेंट्रीपीटल मीन सेंटर की तरफ, टूवर्ड्स सेंटर, ठीक है. ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ बंडल शीथ प्रेजेंट होंगे. And in close association with chloroplasts except F linearis, the presence of these prominent mitochondria in the bundle sheath cells of intermediates may be important in the suppression of photorespiration. इन माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से भी फोटोरेस्पिरेशन सुप्रेस होती है. कैसे कि फोटोरेस्पिरेशन में जब जो है ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है ना. तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया भी उन्हीं सेल्स में मौजूद हैं, फोटो रेस्पिरेशन दोनों कंडीशन स्टार्ट होती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम हो गई है या ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई है, तो जब वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होंगे तो ऑक्सीजन तो वो यूटिलाइज कर लेंगे, वो उस क्लोरोप्लास्ट में मौजूद रुबिस्को को ऑक्सीजन नहीं जाने देंगे. तो वो माइटोकॉन्ड्रिया ही ऑक्सीजन यूज़ कर लेंगे क्योंकि वो एसोसिएटेड भी हैं क्लोरोप्लास्ट के साथ और उसके साथ ही बंडल शीथ सेल में वो प्रेजेंट भी हैं.
तो फोटो रेस्पिरेशन की बजाय ट्रू रेस्पिरेशन होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को कम नहीं होने देगी, और वो फोटोसिंथेसिस में ही यूज़ होता रहेगा उसी सेल के अंदर, बंडल शीथ सेल्स में ही, ठीक है। तो ये इस तरह से C3C4 इंटरमीडिएट जो है वो कंडीशन बन जाती है। जबकि C4 में तो ऐसा नहीं होता ना कि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो बंडल शीथ सेल में इस तरह एक्सेसिवली कि जो फोटो रेस्पिरेशन को सुप्रेस कर सकें। However, in some C3 species such as Panicum laxum and Panicum halacium and Flavaria pringli, mitochondria are also prominent in bundle sheath cells. अब ये C3 के हैं, उसके अंदर ये जो है इनकी प्रेजेंस एग्जिस्ट करती है। In a recent ultra-structural study of leaves of 3 intermediate Panicum species, some mitochondria and bundle sheath cells are completely enclosed by chloroplasts. अब जो intermediates हैं इनके अंदर इतना ज़्यादा strong association भी होता है chloroplast mitochondria का कि sometimes ये completely enclosed होते हैं chloroplast के अंदर. Whether this unusual ultra-structure feature is related to the low photorespiration in these species remains to be established. यानी इस पूरे टॉपिक में ये C3C4 इंटरमीडिएट्स हैं, इसमें यही आप देखेंगे कि इसके अंदर क्रान्स एनाटमी भी है जो कि C4 का फीचर है, और इसमें फोटो रेस्पिरेशन को सुप्रेस भी किया हुआ है। फोटो रेस्पिरेशन जो है वो C3 में होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी ऑफ C3C4 इंटरमीडिएट प्लांट्स. Most intermediates have in common a partially suppressed photorespiration compared to C3 plants. In addition to leaf anatomy, the carbon dioxide compensation point gamma, this symbol is gamma, ठीक है। ये ग्रीक लेटर में थर्ड लेटर है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा इज फर्स्ट, बीटा इज सेकेंड, गामा इज थर्ड लेटर। आपने जो गामा वाई की तरह का या आर की तरह का पहले पढ़ा हुआ होगा, देखा हुआ होगा, दैट इज स्मॉल लेटर, ठीक है। जैसे हमारे इंग्लिश लेटर्स में स्मॉल और कैपिटल लेटर्स होते हैं, इसी तरह से इनके भी स्मॉल और कैपिटल लेटर्स होते हैं। ये गामा कैपिटल लेटर में है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट को कैपिटल गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो दूसरा गामा आपने वो आर शेप पढ़ा हुआ है, दैट इज स्मॉल लेटर ऑफ गामा, ठीक है। The carbon dioxide compensation point gamma is a primary character for identifying C3C4 intermediate species, and it is one qualitative measure of apparent photorespiration, and therefore gamma is a good measure of photorespiratory loss of carbon dioxide from the leaf. Typically at 25 degrees C and 21% oxygen, C3 and C4 plants have gamma values of about 50 microliter per liter and near 0 microliter per liter respectively. यानी C3 जो हैं उनमें 21% ऑक्सीजन पे जो गैमा वैल्यू है वो 50 माइक्रोलीटर पर लीटर आती है, और C4 में यही वैल्यू उसी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे 0 आती है। Plants with intermediate characteristics exhibit values ranging from 1 to 5 microliter per liter in F. brownii and N. minor to 39। यानी इसमें अब आप इंटरमीडिएट में जितनी भी आप पढ़ेंगे वैल्यू गैमा की, वो 0 से 50 के दरमियान में ही आएगी, तो वो यानी कि इंटरमीडिएट पोजीशन पे आएगी, ठीक है। इसमें तो C4 में 0 इसलिए आई है कि इसमें वाटर रेस्पिरेशन नहीं होती, C3 में इसलिए 50 आई है, काफ़ी ज़्यादा आई है कि इसमें फोटो रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होती है। अब इंटरमीडिएट्स में फोटो रेस्पिरेशन को चूंकि सुप्रेस किया गया है तो इसमें वैल्यू कम इंटरमीडिएट ही आएगी, होती है इसमें फोटो रेस्पिरेशन लेकिन सुप्रेस्ड है, ठीक है। ये एफ ब्राउनी एंड एन माइनर में इतनी सुप्रेस है कि 1 to 5 इसकी वैल्यू आती है। एम वर्टिसिलेटा में 39 माइक्रोलीटर पर लीटर वैल्यू आती है, ठीक है। सो ये इसमें कुछ वेरिएशंस जो हैं ड्यू टू डिफरेंसेस इन मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, लीफ एज, कंडीशंस ऑफ मेजरमेंट, लाइट, टेम्परेचर की कंडीशन एंड न्यूट्रिशन की वजह से भी थोड़ी बहुत वेरी करती हैं, बट अदरवाइज दैट इज द रीजन। द इंटरमीडिएट गामा वैल्यूज ऑफ मोस्ट C3C4 स्पीशीज इंडिकेट दैट दे हैव लोअर रेट्स ऑफ अपेरेंट फोटो रेस्पिरेशन दैन C3 plants, yet higher rates than C4 plants. Exceptions are N minor and some Flavaria intermediates, for example Flavaria brownie and Flavaria ramosissima.
which could be classified as C4 species on the basis of their C4 like gamma values. Therefore, in classifying intermediate, several features of the Kranz syndrome or Kranz syndrome mean Kranz anatomy, यानी ये एक डिफरेंट चीज़ है प्लांट्स में, जैसे ह्यूमंस में कोई डिसऑर्डर इस तरह का हो नॉर्मल से हट के तो उसको सिंड्रोम का नाम देते हैं. तो यहाँ पे ये भी एक डिफरेंस है नॉर्मली, तो इसको सिंड्रोम का नाम भी दे देते हैं प्लांट्स में. इंक्लूडिंग अदर मेजर्स ऑफ अपेरेंट फोटो रेस्पिरेशन मस्ट बी कंसिडर्ड. Light dependent release of carbon dioxide into carbon dioxide free air after steady state photosynthesis is reached is another measure of apparent photorespiration that has been used in studying the physiology of intermediates. Although the absolute values vary from species to species in comparative studies, the rates of apparent photorespiration of intermediates in carbon dioxide free air are invariably lower than those of C3 counterparts. Relative to C3 species, the intermediates also have lower ratio of apparent photorespiration in carbon dioxide free air are invariably lower than those of C3 counterparts. Relative to C3 species, the intermediates also have lower ratios of apparent photorespiration in carbon dioxide free air to apparent photosynthesis in normal air, only 30 to 40% of that of C3 species. यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज जो है वो इतनी कम होती है कि C3 जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है उसका 30 to 45% ओनली जो है वो इंटरमीडिएट से रिलीज करता है. इन C3 स्पीशीज गामा इंक्रीजेज लीनियरली विद इंक्रीजिंग ऑक्सीजन. जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ती है तो फोटो रेस्पिरेशन भी बढ़ती है, गामा बढ़ जाएगा. ठीक है. वाइल इन C4 स्पीशीज गामा रिमेन्स लो एज कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज अप टू 50%. C4 में चूंकि फोटो रेस्पिरेशन होनी नहीं है तो वो गामा लो ही रहता है, चाहे ऑक्सीजन जितनी भी बढ़ जाए 50% पे चली जाए. कंपेयर्ड विद C3 स्पीशीज, gamma for intermediate species is less sensitive to changes in oxygen, especially at low oxygen level. ठीक है. Another interesting observation with C3 C4 intermediates with regard to gamma is the influence of light intensity. In Panicum milioides and Moricandia arvensis, gamma at 21% oxygen increases from intermediate value to value approaching those of C3 plants as the photosynthetic photon flux density decreases from about 30% to 5% of full sunlight. यानी photons जो हैं या sunlight जो है वो full sunlight की निस्बत 30% से भी कम हो के 5% तक, या आप कह लें कि 30 से 5 की रेंज में भी आ जाए, तो उसमें क्या होता है at 21% oxygen increases from intermediate value to values approaching those of C3 plants as the photosynthetic photon flux. ये intermediate का बताया है कि जो intermediates हैं वो C3 की तरह यहाँ पे इस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं. A similar light effect, यानी उनका similar light effect ऊपर आ रहा है और इसी तरह का is also observed in the intermediate Flavaria linearis. In contrast, gamma for C3 and C4 plants remains essentially unchanged over this range of light intensities. इसको मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ इस पैराग्राफ को कि C3 C4 इंटरमीडिएट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन या गैमा जो है ये लाइट इंटेंसिटी से भी इन्फ्लुएंस होता है. फॉर एग्जांपल इन पेनिकम मेलोइडीज एंड इन मोरिकेंडा अर्वेंसिस जो गैमा है या फोटो रेस्पिरेशन की जो मेजरमेंट है एट 21% ऑक्सीजन, ये स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर मेजर करते हैं इस ऑक्सीजन लेवल पे. गैमा इंक्रीजेज फ्रॉम इंटरमीडिएट वैल्यूज़ टू वैल्यूज़ अप्रोचिंग दोज ऑफ C3 प्लांट्स. C3 प्लांट्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है. ठीक है. ऊपर हमने देखा है 50 तक जा रही होती है, तो वहाँ तक भी इसका रेट चला जाता है जैसे ही लाइट इंटेंसिटी जो है वो फुल सनलाइट से कम होती जाती है. ठीक है. सिमिलर लाइट इफेक्ट जो है वो एक और इंटरमीडिएट प्लांट एफ लिनियरिस में जो है ऑब्जर्व किया गया. वाइल इन C3 एंड C4 gamma remains essentially unchanged over the range of light intensities, क्योंकि
C3 में फोटो रेस्पिरेशन होती है, लाइट इंटेंसिटी कम हो या ज़्यादा हो, और C4 में फोटो रेस्पिरेशन होती नहीं है, लाइट इंटेंसिटी कम हो या ज़्यादा हो। जबकि इंटरमीडिएट्स में जो फोटो रेस्पिरेशन है वो लाइट डिपेंडेंट भी है, ठीक है। Another physiological characteristic of some intermediate species is reduced oxygen inhibition of photosynthesis at atmospheric level of carbon dioxide related to that for C3 species. C3 species में क्या होता है, ऑक्सीजन इनहिबिट करती है फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। जबकि इंटरमीडिएट स्पीशीज़ में क्या होता है कि ऑक्सीजन इनहिबिशन रिड्यूस हो जाती है, फोटोसिंथेसिस को ऑक्सीजन कम से कम इनहिबिट कर सकती है, क्योंकि इसमें अल्टरनेट पाथ आ जाता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, तो फोटो रेस्पिरेशन के बजाय ट्रू रेस्पिरेशन होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन वहाँ यूज़ हो जाती है अगर एक्सेस में हो, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो तो वो भी माइटोकॉन्ड्रिया ज़ाहिर है रेस्पिरेशन साथ साथ कर रहे हैं एक्सेसिव, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी कम नहीं होने देते, तो इस वजह से रुबिस्को का ऑक्सीजनेस फंक्शन एक्टिव नहीं होने पाता क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होने पाती। For a number of intermediates, the percentage inhibition of photosynthesis by 21% oxygen ranges from 20 to 25, except a few exceptions. Under similar conditions, photosynthesis by C3 plants is inhibited by about 30 to 35%. This is very little effect of oxygen. 21 versus 2% on the photosynthesis in C4 plants, यानी C4 plants में only 2% जो है वो inhibition होती है, ठीक है। Occasionally 21% oxygen may cause a slight stimulation of photosynthesis in C4, तो ये जो 2% है, this is very slight stimulation, ठीक है। The oxygen inhibition of carboxylation efficiency CE has been examined in some intermediates. In C3 species, oxygen inhibits carboxylation efficiency due to the competitive nature of oxygen with respect to carbon dioxide on Rubesco. अब कार्बोक्सिलेशन एफिशिएंसी क्या है, ऑक्सीजन इनहिबिशन ऑफ कार्बोक्सिलेशन एफिशिएंसी, यानी जो रुबिस्को फंक्शन है, ठीक है, रुबिस्को का जो फंक्शन है उसी की बात हो रही है। बट ऑक्सीजन हैज़ नो इफेक्ट ऑन कार्बोक्सिलेशन एफिशिएंसी इन C4 स्पीशीज। C4 में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, उसमें ऑक्सीजन कोई रोल प्ले नहीं करती कार्बोक्सिलेशन एफिशिएंसी को कम या ज़्यादा करने में, because of the carbon dioxide concentrating mechanism by the C4 pathway. If the intermediate species possess a carbon dioxide concentrating mechanism, यानी कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज होती जाए, जैसा कि हमने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जाहिर है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेटिंग मैकेनिज्म ही है, उसकी कंसनट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। एज डू C4 प्लांट्स, C4 प्लांट्स में भी इसी तरह जो है वो थोड़ा और मैकेनिज्म होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते लेकिन उसमें भी ये प्रोड्यूस होती है। कहाँ गया, if the intermediate species possess a carbon dioxide concentrated mechanism as do C4 plants, then an increase in oxygen from 2 to 21% should have less effect on carboxylation efficiency compared to C3 species. In several intermediates, including P. meloides, F. anomala, F. linearis, the degree of oxygen inhibition of CE is equal to that of C3 species, suggesting the absence of carbon dioxide concentrating mechanism. Only if in F. ramosissima and N. minor, the oxygen inhibition of carboxylation efficiency is markedly lower than in the C3 plants, possibly because of a limited carbon dioxide concentration mechanism. Next is general mechanism by which intermediates may reduce apparent photorespiration. अब वो कौन कौन से mechanisms हैं जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन रिड्यूस हो सकती है intermediates में? As already noted, there are two means by which oxygen inhibits photosynthesis in C3 plants. Firstly, oxygen is a competitive inhibitor of Rubisco with respect to carbon dioxide. This means in the presence of oxygen, it takes a higher carbon dioxide to reach saturation. Otherwise, ये Rubisco का oxygenase function start कर देगा.
Second, carbon dioxide is released during metabolism in the glycolate pathway in C4 plants by concentrating carbon dioxide at the site of Rubisco. Both of these means of oxygen inhibition of photosynthesis are largely prevented. Elevated carbon dioxide will decrease the competition by oxygen and reduce the synthesis of glycolate that leads to photorespiration. However, another means of minimizing losses from photorespiration is the reassimilation of photorespired carbon dioxide. कि या तो ऑक्सीजन को एक्सेस ना होने दें या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी ना होने दें, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको दोबारा से प्रोड्यूस करते जाएं, ठीक है. Although less effective than the carbon dioxide concentrating mechanism in C4 plants, the ability to reassimilate photorespired carbon dioxide may be an early step in the presence of evolution of C4 photosynthesis. अब ये यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि C3 C4 इंटरमीडिएट्स जो हैं वो पहले इवॉल्व हुए, पहले C3 इवॉल्व हुए, फिर C3 C4 इंटरमीडिएट्स इवॉल्व हुए और फिर C4 इवॉल्व हुए, ठीक है. तो हमें इनको पढ़ना भी इसी तरतीब से ही था इनफैक्ट, लेकिन ये मैंने आपके पिछले लेक्चर में से इसलिए इनको स्किप किया था कि ये आई गेस आपके लिए एक न्यू टॉपिक है. C3 भी आपने पहले पढ़े होंगे, C4 भी पढ़े होंगे, कैम भी पढ़े होंगे, लेकिन ये इंटरमीडिएट्स आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, तो मैंने इनका एक अलग लेक्चर जो है वो इसलिए मैं रखना चाह रही थी. फिगर 1 इज़ अ जनरल स्कीम फॉर फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो कि C3 और C4 में होती है, वो इस फिगर 1 में शो की हुई है, ठीक है. इसमें आप देख सकते हैं कि पॉसिबल फेट ऑफ फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड क्या है. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर गोज टू द सेल और ये C4 पाथवे में चली जाती है. PEP और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, C4 एसिड्स बनेंगे और फिर वापस PEP फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड रीजनरेट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड इधर रीजनरेट हो जाएगी. ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है C4 प्लांट्स में भी आगे C3 साइकिल में PCR साइकिल, डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल को कहते हैं, उसमें अगेन यूटिलाइज हो जाती है, फिक्स होती है और ये कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्मेशन हो जाती है. और ये ऑक्सीजन जो है ये ट्रू रेस्पिरेशन के अलावा क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, PCO साइकिल में यूज़ होती है और ये फोटो रेस्पिरेशन साइकिल है, ठीक है. और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज़ होती है जो कि अगेन C4 प्लांट्स भी उसको यूज़ कर लेते हैं अंदर ही, या फिर उसको डार्क रिएक्शन में यूज़ किया जा सकता है, या फिर वो अगर उसकी सेल के अंदर ज़रूरत नहीं है तो फिर वो सेल से रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है. ये डॉटेड लाइन जो है वो रिलीज़ को एरोज से आपको पता लग रहा है. ये आपको नीचे बताया हुआ PCR साइकिल इज फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल दैट इज डार्क रिएक्शंस, ठीक है. और PCO साइकिल इज फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल दैट इज फोटो रेस्पिरेशन, एंड CH2O is carbohydrate. In theory, there are several means by which a species could have levels of apparent photorespiration between those of a C3 and C4 species as indicated below. यानी 3 डिफरेंट वेज बताए हुए हैं जिस जो कि ये इंटरमीडिएट्स उनमें से कोई एक वे यूज़ कर सकते हैं टू हैव लेवल्स ऑफ अपेरेंट फोटो रेस्पिरेशन बिटवीन दोज ऑफ C3 एंड C4. यानी मेजर डिफरेंस इनमें ये है कि C3 और C4 के इंटरमीडिएट फोटो रेस्पिरेशन इनमें होती है, तो वो जो इनके इंटरमीडिएट लेवल पे फोटो रेस्पिरेशन होनी है वो किन तरीक़ों से हो सकती है, उसके 2-3 मेथड्स हैं, ठीक है. टाइप 1 इज़ नो C4 साइकिल, ठीक है. ऐसे इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं जिनमें C4 साइकिल एग्जिस्ट ही ना करता हो और उनके अंदर फिर फोटो रेस्पिरेशन जो है वो इंटरमीडिएट हो जाती है. In type 1 intermediates, photorespiration is considered to be reduced by refixing photorespired carbon dioxide. जो photorespired carbon dioxide है, अब आप देखें कि ये तो फिर C3 वाली ही बात हो गई ना, no C4 cycle, ठीक है. In general, these intermediates have low activities of C4 pathway enzyme similar to C3 plants and they lack a functional C4 cycle.
They possess a crans-like anatomy with mitochondria and chloroplasts as prominent in the bundle sheath cells as in the mesophyll cells. अब ये इंटरमीडिएट कंडीशन हो गई ना कि C3 लाइक भी हैं और C4 लाइक. C4 लाइक इनकी एनाटमी है और C3 लाइक इनकी फिजियोलॉजी है. A primary site of release of photorespired carbon dioxide is suggested to be in the bundle sheath cells while it is efficiently refixed. As already noted, these species have reduced apparent photorespiration compared to C3 species of these genera, as shown by lower apparent photorespiration in the light, in carbon dioxide, free air and lower gamma. अब ये आप डायग्राम पे ज़रा गौर करें कि दिस इज़ द मेसोफिल सेल, दिस इज़ बंडल शीथ सेल. ठीक है, क्रैन्स एनाटमी इस टाइप में प्रेजेंट है. इंटरमीडिएट्स की वो टाइप जिसमें नो C4 साइकिल बट C4 एनाटमी प्रेजेंट है, क्रैन्स एनाटमी प्रेजेंट है. ठीक है, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रेवल करेगी फ्रॉम मेसोफिल सेल टू द बंडल शीट सेल्स. ठीक है, मेसोफिल सेल के बाहर यहाँ पे एपिडर्मिस है, वहाँ से स्ट्रोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई है सेल में, मेसोफिल में, और मेसोफिल से ट्रैवल करती हुई बंडल शीट सेल में जाएगी. बंडल शीट सेल से आगे फिर इसकी स्टील या वेस्कुलर बंडल होंगे ना. ठीक है, तो अब ये देखें माइटोकॉन्ड्रिया, ये 1 2 3 4 माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं. दीज आर सेंट्रीपिटल माइटोकॉन्ड्रिया. सेंटर की तरफ है ना, ये सेंटर है इसका, इस तरफ जो है ये बाहर की तरफ है, एपिडर्मिस है. ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर हुई. अब ये PCR साइकिल के थ्रू या डार्क रिएक्शंस के थ्रू इसने कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करने हैं. ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स बने और ये असिमिलेट हो जाएंगे या कन्वर्ट हो जाएंगे, जिस भी फॉर्म में इसमें कन्वर्ट होना है. या क्या हो सकता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आई है और मेसोफिल सेल में भी डार्क रिएक्शन हो रहा है, तो ये वहाँ पे ही कार्बोहाइड्रेट्स बना देगी. ठीक है, अब इस PCR साइकिल से ये देखें, यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, वो भी यहाँ पे PCR साइकिल या डार्क रिएक्शन में यूज़ होगी और वो भी कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्मेशन में यूज़ हो जाएगी. इसी तरह ये भी देखें, जहाँ जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है पास पास क्लोरोप्लास्ट भी हैं. जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज़ हो रही है वो भी इधर क्लोरोप्लास्ट में, ये क्लोरोप्लास्ट हैं, उनमें डार्क रिएक्शन में यूज़ होती जाएगी और वहाँ से ग्लूकोज बनता जाएगा. ठीक है, अब आप देखें ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या कर रही है, ऑक्सीजन भी इसी तरह ट्रैवल करके गई बंडल शीट सेल में और वहाँ से इसने ग्लाइकोलेट फॉर्मेशन की और वो ग्लाइसिन और फिर देन वो माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाएगी. ठीक हो गया. अब इसी तरह यहाँ से भी ऑक्सीजन आई और वो ग्लाइकोलेट इधर क्लोरोप्लास्ट के थ्रू ग्लाइकोलेट और फिर ग्लाइसिन में और फिर बंडल शीट सेल में ग्लाइसिन जाके माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाएगी. ठीक है, these are the proposed mechanism of refixation of photorespired carbon dioxide in the absence of a C4 cycle in intermediate species. टाइप 1 जो है ऊपर मैंने आपको जो टेक्स्ट में पढ़ाया है, ठीक है, इसी के ऊपर, तो ये उसी की डायग्राम है. CP फॉर क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है CP. ठीक है, माइटो फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, सी लेजेंड ऑफ फिगर 1 फॉर द ऑब्जर्वेशन, यानी बाकी के जैसे PCR और क्या है, PCR और CH2O जो है ये लेजेंड्स फिगर नंबर 1 में बताए हुए हैं कि ये किसके एब्रीविएशन है. ठीक है, ये बताया हुआ है कि सी लेजेंड ऑफ फिगर 1 फॉर एब्रीविएशंस. नेक्स्ट है जी टाइप 2 विद C4 साइकिल. इसमें C4 साइकिल प्रेजेंट है. इन टाइप 2 इंटरमीडिएट्स देयर इज evidence for significant levels of carbon C4 pathway enzymes and a functional C4 pathway as well. The extent of C4 pathway activity and the efficiency in donation of carbon from the C4 pathway to the PCR cycle vary among the species of this type. The plants have crans-like anatomy. At least some of the species that are most C4-like have a greater reduction in photorespiration compared to type 1 intermediates from analysis of gamma. यानी जब gamma मेजर किया गया तो उससे पता लगा कि टाइप 2 इंटरमीडिएट्स जो हैं
they have a greater reduction in photorespiration as compared to type 1 intermediates. यानी इंटरमीडिएट्स की 3 डिफरेंट टाइप्स है ना. टाइप 1 एक हमने पढ़ ली जिसमें C4 साइकिल नहीं एग्जिस्ट करता लेकिन ट्रांस एनाटमी होती है, उसमें क्या प्रोसीजर है वो हमने पढ़ लिया. दूसरी टाइप है जिसमें C4 साइकिल एग्जिस्ट करता है, C4 एनाटमी भी है. अब इसमें क्या प्रोसीजर है वो भी हम पढ़ रहे हैं. ठीक है. ऑक्सीजन इनहिबिशन ऑफ CE एंड ऑक्सीजन इनहिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस by examining the biochemistry of specific intermediates in some detail, the basis for their reduction in photorespiration and the possible evolution of intermediates can be considered. और ये इसकी डायग्राम है. इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ फिर आपको मैं बताती हूँ. ये जो स्क्रीन पे नज़र आए आपको पूरी. Yes, you can see this now. Proposed mechanism by which the C4 cycle may reduce photorespiration in intermediate species. In this diagram, C4 cycle fixes some atmospheric carbon dioxide and donates it to the PCA cycle. In B diagram, C4 cycle fixes some photorespired carbon dioxide and donates it to PCA cycle. ठीक है. अब इसमें दिखाया हुआ है कि जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैसे इसने फिक्स किया है, और इसमें दिखाया है कि जो फोटोरेस्पायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इसने अंदर ही कैसे फिक्स कर लिया है. ठीक है. अब इसमें आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड जो है जैसे हमने ऊपर पढ़ा है टाइप 1 में, उसी तरह से ये GPCR साइकिल के थ्रू CH2 फॉर्मेशन बनाएगी, यानी डार्क रिएक्शन के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स बनाएगी. अब इसमें टाइप 1 के अलावा टाइप 2 में C4 साइकिल भी है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड C4 साइकिल में भी यूज़ होगी, C4 एसिड्स बनाएगी. ठीक है. फास्फोनोल पायरुविक एसिड के साथ मिलके C4 एसिड्स जो हैं वो अगेन जो है वो चले जाएंगे क्लोरोप्लास्ट पे, और वहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड और C3 में कन्वर्ट होंगे. C3 वापस आएगा और PEP बनाएगा. ठीक है. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अगेन यहाँ पे फिक्स होगी और CH2 यानी कैल्विन साइकिल के थ्रू ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाएगी. ठीक है. PCR साइकिल यहाँ पे अगेन रन होगा. और दूसरा आप देखें कि फोटोरेस्पायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे PCA साइकिल में जाती है. ये कार्बन डाइऑक्साइड तो उसी तरह से PCR साइकिल डार्क रिएक्शन के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी. अब ये ऑक्सीजन है जो फोटो रेस्पिरेशन में यूज़ हो रही है, ग्लाइकोलेट से ग्लाइसिन बनना, और फिर ये ग्लाइसिन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में गई और वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड इसने रिलीज़ कर दी. ठीक हो गया. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फिर यूज़ हो रही है यहाँ पे C4 एसिड फॉर्मेशन में, यानी C4 साइकिल में चली जाएगी और वहाँ से फिर ये इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आगे चले जाएंगे C3 साइकिल में. ठीक है. और फिर ये C4 साइकिल भी इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा वाया PEP फास्फोनोल पायरुविक एसिड जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करेगा, C4 एसिड्स बनते रहेंगे. यानी जब जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होती रहेगी ये C4 साइकिल में इसी तरह से साइक्लेट होती रहेगी. ठीक है. तो ये बताया है कि फोटो रेस्पायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे यहाँ पे यूज़ हो रही है. ऊपर कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं दिखाई हुई, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखाया हुआ, कोई ऑक्सीजन बाहर से आती हुई नहीं दिखाई हुई. ठीक है. यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे रुबिस्को को या इस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को डिस्टर्ब करने के बजाय ये ग्लाइसिन के बाद यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाती है और ये यहाँ से फिर C4 साइकिल में चली जाती है. ठीक हो गया. एज अ प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया. और यही हमारा आज का टॉपिक था. टाइप 3 रह गई है, ये है टाइप 3. इनफैक्ट डायग्राम जो है वो टाइप 2 की इसके नीचे आ गई है. टाइप 3 क्या है, इसमें मॉडिफाइड रुबिस्को होता है. ये एक हाइपोथेसिस है, आप कह लेंगे ये एक थ्योरी है, लेकिन ऐसी कोई एग्जिस्टेंस अभी तक नहीं पाई गई कि कोई ऐसे इंटरमीडिएट अभी डिस्कवर नहीं हुए कि जिनमें रुबिस्को ही मॉडिफाइड हो, इतना मॉडिफाइड हो कि वो ऑक्सीजनेज फंक्शन परफॉर्म करे ही ना, चाहे जितनी मर्जी उसको ऑक्सीजन मिल जाए या जितनी कम उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए. ठीक है. तो ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ अभी तक, ऐसा कोई डिस्कवरी नहीं हुई, लेकिन ये एक हाइपोथेसिस था. फर्स्ट वन जो है वो नो C4 था वो मिले, फिर सेकंड वन था विद C4 वो भी मिले, फिर अब ये रुबिस्को वाला ये नहीं मिले, इसकी मॉडिफिकेशन नहीं है. इफ़ प्रॉपर्टीज ऑफ रुबिस्को वर मॉडिफाइड सच दैट रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड वाज इंक्रीज रिलेटिव टू रिएक्शन विद
टू फोटो रेस्पिरेशन ट्रू एंड अपेरेंट, यानी दोनों टाइप की। ट्रू फोटो रेस्पिरेशन जो एक्चुअली हो रही है, और अपेरेंट जो उसके जस्ट हमें प्रोडक्ट रिलीज हो रहे हैं, जो कुछ प्रोडक्ट्स उसके अंदर ही यूज़ भी हो जाते हैं ना, जो अनयूज्ड होते हैं, जस्ट वो would be reduced and the species would have intermediate physiological characteristics. Among the possibilities discussed above, the biochemical level, at the biochemical level, there is currently evidence for type 1 and 2 intermediates. No intermediate species among higher plants have been identified which have a lower photorespiration through a modification in Rubisco type 3. यानी इस तरह के कोई intermediates अभी डिस्कवर नहीं हुए. So this is all about C3 C4 intermediates. I hope you have a better concept of now these C3 C4 intermediates. If you have any confusion, you can ask. Thank you. Allah Hafiz.